حضرت امام حسین ملکوت مشتاق دیدار حسین. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ دور ختم ہو گیا جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی حکومت 19 سال تک رہی۔ ان سالوں میں اسلامک سوسائٹی اور حکومت دونوں میں بڑی تبدیلی آئی۔ جب حضرت معاویہ نے کنٹرول سنبھالا تو مصر سے لے کر ایران تک افراتفری اور نفرت کا ماحول تھا۔ حضرت معاویہ کے سیاسی دانائی اور صلاحیت نے مسلمان دنیا کو اس برے حالت سے بچا لیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ یہ مصیبت کبھی ختم نہ ہوتی۔ حضرت معاویہ نے اپنے مخالفوں سے زبردستی کرنے کی بجائے گفتگو اور صلح کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی حکومت ایک عرب قبائلی سردار کے اسٹائل میں چلائی۔ حضرت معاویہ نے خلافت کو بادشاہ میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ وہ پہلے خلیفہ تھے جو تقریباً ایک تخت پر بیٹھے رہے اور جنہیں قتل کے خوف سے مسجد کے اندر کوئی محفوظ جگہ پر نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے پہلے 4 خلفاؤں جیسے سادگی اور ہیوملٹی والے طریقے چوز نہیں کیے، بلکہ ان کا طرز حکومت ساسانی اور رومن حکمرانوں جیسا ہو گیا، جس میں بادشاہت اور دربار کا رنگ تھا۔ جب حضرت علی کی خلافت کے دوران پیدا ہونے والے پرابلمز کے بعد بھی حضرت معاویہ نے مسلم امت کو ایک بار پھر متحد کر دیا، تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کا کردار کنٹروورشل بنا گیا۔ انہوں نے اپنی موت سے کافی پہلے اپنے بیٹا یزید کو اپنا کراؤن پرنس مقرر کیا۔ یزید کے پاس نہ تو صحابی ہونے کا رتبہ تھا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربت کا شرف۔ اس کی لائف اسٹائل بھی کافی تنقیدی نظر سے دیکھا گیا۔ مکہ اور مدینہ میں یہ باتیں مشہور تھی کہ یزید شرابی ہے، عیاشی کرتا ہے اور گانے بجانے والی عورتوں میں گھرا رہتا ہے۔ دمشق کے مشہور لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ حضرت معاویہ نے عرب قبائل کے سرداروں کی ایک میٹنگ بلائی تاکہ اپنا جانشین طے کر سکے۔ ظاہری طور پر یہ میٹنگ اسی شورا جیسی لگ رہی تھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بنائی تھی۔ میٹنگ میں شرکت کرنے والوں نے سمجھا کہ ان کی رائے اخلاص کے ساتھ مانگی جا رہی ہے، اس لیے سب نے کھل کر مشورہ دینا شروع کیا۔ ہر شخص نے مختلف لوگوں کے اچھے اور کمزور پہلو پر بات کی۔ اچانک خلیفہ کا ایک خاص آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سب پر غصے بھری نظر ڈالی اور کہا، ابھی تک تو اس نے امیر معاویہ کی طرف اشارہ کیا، یہ تمام مومنین کے سردار ہیں، لیکن اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ہیں۔ اس نے یزید کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو سمجھ لے، افیئرز کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے جو بھی ڈیموکریٹک طریقے سے کہنا تھا کہہ دیا، اشارہ بھی کیے، لیکن آخر میں ڈر کی وجہ سے پوری فرما برداری کے ساتھ یزید کو آنے والے خلیفہ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ جب رات کو سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس گئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ آئندہ سے جانشین بننے کا مسئلہ کبھی پھر نہیں اٹھایا جائے گا۔ جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اسے پتا تھا کہ اس کے والد نے صرف مخالفین کو دبایا تھا، ختم نہیں کیا۔ اس لیے اس نے ان سب پر کڑی نظر رکھنا شروع کی جو اس کی حکومت کو چیلنج کر سکتے تھے، خاص کر حضرت علی کی قریبی رشتہ دار۔ حضرت حسن کا وفات ہو چکا تھا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین زندہ تھے۔ اس وقت حضرت حسین کی ایج 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ ان کے والد حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ انہیں حقیقی خلیفہ سمجھتے ہیں، اور جذباتی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جو روحانی انقلاب آیا تھا وہ زندہ رہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کون؟ حضرت حسین نے ریاست کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا، ولید نے مدینہ کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے یزید کا لیٹر سنایا۔ حضرت حسین نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم
जो पहले मदीना का गवर्नर था और अब वलीद के साथ एडवाइजर के तौर पर था, उसने वलीद को मशवरा दिया कि हुसैन से इसी वक्त बैत ले लो और उन्हें जाने ना दो। लेकिन वलीद ने मरवान के मशवरा को नहीं माना और उनकी बैत को अगले दिन पर छोड़ दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वलीद के पास नहीं आए थे, उनको बुलवाया गया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और एक रात की मोहलत का वक्त मांगी। वलीद ने उन्हें भी वक्त दे दिया। उस रात हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने घर वालों के साथ मदीना से निकल गए। अगले दिन वलीद और मरवान 30 लोगों का एक ग्रुप लेकर उनकी तलाश में निकला, लेकिन कुछ पता नहीं चला और शाम तक वापस आ गया। पूरा दिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तलाश में गुजरा। इस वजह से हजरत हुसैन की तरफ ध्यान नहीं दी गई। दूसरी रात हजरत हुसैन भी अपने घर वालों के साथ मदीना से रवाना हो गए। इन हजरात के जाने के बाद मदीना के लोगों से यजीद के लिए बैत ले ली गई। कुछ दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मदीना से मक्का की तरफ चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली दोनों मक्का में एक साथ दाखिल हुए। उन्हें देखते ही अब्दुल्ला बिन सफवान बिन उमैया, जो मक्का का शरीफ लोगों में से था, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली। उसके बाद चंद बुजुर्ग के सिवा पूरा मक्का उनके हाथ पर बैत कर लिया। हजरत हुसैन ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत नहीं की और ना ही अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनसे या उनके घर वालों से बैत लेने की कोशिश की। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत नहीं की और ना ही अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैत लेने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत हुसैन से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अक्सर मिलते रहते और मशवरा भी करते रहते। हारिस बिन खालिद, जो मक्का में था और अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, उसने सूरत हाल लिख कर यजीद को भेज दी। ये सब जानकर यजीद ने अम्र बिन सईद को हुक्म दिया, मक्का जाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को गिरफ्तार करो, उनके पाँव में जंजीर डालकर मेरे पास भेजो। अम्र ने एक बड़ी फौज मक्का की तरफ भेजी। वहाँ जंग हुई, मगर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फतह हासिल की और मदीना से आई फौज का सिपह सलार गिरफ्तार होकर कैद हो गया। कूफा वाले अमीर मुआविया ही के ज़माने से हजरत हुसैन के साथ खत और खिताबत रखते और बार बार लिखते रहते थे कि अब आप कूफा चले आए, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। कूफा वालों की उन खुफिया कार्रवाइयों और साजिशों से अमीर मुआविया भी वाकिफ थे। हजरत हसन कूफा वालों की आदत का निहायत सही अंदाज़ा रखते थे, इसलिए उन्होंने फौत से पहले हजरत हुसैन को वसीयत की थी कि तुम कूफा वालों के धोखे में नहीं आना। इधर अमीर मुआविया यजीद को ये बात पहले ही समझा दी थी कि कूफा वाले ज़रूर हुसैन को बगावत पर उकसाएंगे। अगर कभी ऐसा वक्त आए और तुम हुसैन पर काबू पालो तो उनके साथ नरम से बर्ताव करना। इस दौरान मक्का की हुकूमत अब पूरी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में आ चुकी थी। कूफा में जब वहाँ के गवर्नर नुमान बिन बशीर के पास यजीद का लेटर पहुँचा और अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर आम हो गई तो बनु उमैया के सपोर्टर्स ने फौरन नुमान के हाथ पर यजीद के लिए बैत कर ली। लेकिन शियाने अली और शियाने हुसैन, जो पहले ही से हजरत हुसैन को कूफा बुलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बैत में देर की और सब लोग सुलेमान बिन सर्द के घर में इकट्ठा हुए। वहाँ सबने मिलकर ये फैसला किया, हम यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करते, हुसैन को कूफा बुलाया जाए। ये सब बातें चुपके से हो रही थी कि उन लोगों ने ये खबर सुनी कि हुसैन मदीना से मक्का चले गए हैं। मगर वहाँ अहले मक्का ने हुसैन को नहीं बल्कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना रूलर बना लिया है। हुसैन अभी भी मक्का ही में मौजूद हैं। उन्होंने अब तक अब्दुल्ला बिन जुबैर का हाथ पर बैत नहीं की। ये सुनकर कूफा वालों ने हजरत हुसैन के पास एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने कहा, हम आपके और आपके वालिद के महबूब हैं और बनु उमैया का दुश्मन है। हमने आपके वालिद की मदद में तलहा और जुबैर से जंग की। हमने मैदान सिफीन में सख्त लड़ाई की और शामियों के दांत खट्टे कर दिए। अब हम आपके साथ मिलकर भी जंग करने को तैयार हैं। आप फौरन इस खत को देखते ही कूफा की तरफ रवाना हो जाइए। यहाँ आइए ताकि हम नुमान बिन बशीर को कत्ल करके
कोफा आपके सुपुर्द कर दे। कोफा और इराक में 1 लाख सिपाही मौजूद हैं। वो सब के सब आपके हाथ पर बैत करने को तैयार है। हम आपको हकदार खिलाफत यकीन करते हैं। यजीद तो किसी तरह भी आपके मुकाबले में खिलाफत का मुस्तहिक नहीं लगता। यह मौका है, देर बिल्कुल ना कीजिए। हम यजीद को कत्ल करके आपको तमाम आलमी इस्लाम का तन्हा खलीफा बनाना चाहते हैं। हमारे सरदारों ने यजीद के गवर्नर नुमान बिन बशीर के पीछे जुमा की नमाज पढ़नी भी छोड़ दी है, क्योंकि हम इमामत का मुस्तहिक आपको और आपके डिप्यूटीज को ही समझते हैं। जब हजरत हुसैन के पास मक्का में इस सिलसिले में लगातार खत आने लगे तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया। यह मुस्लिम उन्हीं अकील बिन तालिब के बेटे हैं जो अमीर मुआविया के खास दोस्तों और एडवाइजर में से थे। तुम मेरे डिप्यूटी बनकर कोफा जाओ, चुपके से सफर करो और चुपके से कोफा में रहो और मेरे नाम पर लोगों से चुपके से बैत लो। जो लोग तुम्हारे हाथ पर बैत करे उनकी तादाद और खास के नाम खत में लिख कर मेरे पास रवाना करो। तुम अपने आप को छुपे रहने की बहुत कोशिश करो और उन लोगों को जो बैत में दाखिल हो समझाओ कि जब तक मैं वहां ना पहुंचूं हरगिज लड़ाई ना करे। मुस्लिम बिन अकील रवाना हुए और कोफा में पहुंचकर मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर ठहरे। उसी वक्त यह खबर शियाने अली में फैल गई। लोग ज्यादा तादाद में आकर बैत करना शुरू किया। पहले ही दिन 12,000 आदमियों ने बैत की। मुस्लिम ने हजरत हुसैन के नाम अपने खैरियत के साथ पहुंचने और लोगों के बैत करने का हाल लिखा और उनको खबर दी कि पहले दिन 12,000 आदमी बैत में दाखिल हुए हैं। आप जब आएंगे और एलानिया बैत लेना शुरू करेंगे तो लाखों आदमी बैत में दाखिल हो जाएंगे। यह खत हजरत हुसैन के पास कैस व अब्दुल रहमान 2 शख्स लेकर रवाना हुए। हजरत हुसैन ने इस खत को पढ़कर बहुत खुश हुए और दोनों को फौरन वापस कर दिया और कहा कि मैं जल्द कोफा पहुंचता हूं। अब हजरत हुसैन ने यह ख्याल करके कि बसरा में अली ग्रुप काफी तादाद में मौजूद है, अपने एक भरोसेमंद को अहनफ बिन मालिक और दूसरे शुरफा बसरा के नाम लेटर्स देकर बसरा रवाना किया। उन लेटर्स में लिखा था कि आपको मेरे हाथ पर बैत करनी चाहिए और फौरन कोफा पहुंच जाना चाहिए। ये बात मशहूर हो गई कि मुस्लिम बिन अकील कोफा में लोगों से बैत ले रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम नुमान बिन बशीर के पास आया और कहा कि ऐ अमीर, खलीफा वक्त के काम में ऐसी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आज कई दिन हुए मुस्लिम बिन अकील कोफा में आकर लोगों से हुसैन बिन अली की खिलाफत के लिए बैत ले रहे हैं। आपको चाहिए कि मुस्लिम को कत्ल कर दे या गिरफ्तार करके यजीद के पास भेज दे और जिन लोगों ने बैत की है उनको भी सख्त सजा दे। नुमान बिन बशीर ने कहा कि ये लोग जिस काम को मुझसे छुपा कर रहे हैं मैं उसको जाहिर करना मुनासिब नहीं समझता। जब तक ये लोग मुकाबले के लिए ना निकलेंगे मैं उन पर हमला नहीं करूंगा। अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर बाहर आया और उसी वक्त यजीद को एक लेटर लिखा। इस लेटर में अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने ऐसी बात लिखी कि यजीद इस लेटर को पढ़कर परेशान और फिक्रमंद हुआ। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने ऐसा क्या लिखा था